Assalamualaikum. I am Miss Saida, your maths teacher. I will teach math of class 6. This is your new countdown book. I hope all of you have done work of September, but I will repeat it again, this work. Student, I will again start integers unit 5. In this unit, student, all of you have learned about the integers, to perform calculation with integers, rules of addition, subtraction, multiplication and division. To apply the rule of operating on integers, commutative law, associative law, distributive law. Student, what is integer? Integers are an infinite series of numbers, both positive and negative. Means all positive and negative numbers are included in integers. Integers include positive numbers such as +1, +2, +3, as well as negative number such as -1, -2, -3 and 0. We will positive number we say 1, 2, 3, 4, and negative number we will call sign -1, -2, -3 and so on. The positive and negative integers can be expressed in separate set. Z plus, +1, +2, +3, +4 and so on. These are called positive integers. Z minus, -4, -2, -1. There is no smallest or largest number in the set of integers. It is an infinite set. Student, look at this set. These are infinite set. यहाँ पे आपको इन दोनों सेटों में आप देख लें, आप डायरेक्ट डाल देंगे, यानी कि आगे तक भर सकते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आपको इसमें मेंशन किए गए हैं कि ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. Integers included the number 1, 2, 3. Therefore, they included all the natural numbers. Integers also included 0. Therefore, they included all the whole numbers. 0 is neither positive nor negative. It is simply an integer and the least number of the system of whole number. स्टूडेंट, जब मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करवाई थी तो उसमें ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में 0 का भी आया था कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, और मैंने आप लोगों को सब ये बताया था कि ये मैं रिपीट कर चुकी थी कि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. अब आप इसमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपकी नंबर लाइन है एक, इसके अंदर आपके पास डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग मीन्स होती है स्टूडेंट के बिलो 0 से नीचे डिक्रीजिंग नंबर. ठीक, ये मैंने आपको उसके अंदर एक डायग्राम बना के भी बताई थी आपको वाइट पेज पे पूरी, कि ये आपने एक आपने लाइन बना ली, ड्रॉ कर दी, फिर आपने यहाँ पे 0 लिखा मिड में. अब आपके पास राइट हैंड पे जितने भी नंबर हैं, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स and these are called negative integers. This is decreasing, यहाँ पे ये कम हो रहा है, और this is increasing, यहाँ पे ये बढ़ रहा है. जैसे सपोज यहाँ पे 0 है स्टूडेंट,
अब ये 0 जो है इसके अंदर आप देखिए ये हैगा +1 +2 +3, यानी कि इट मीन्स 1 2 3 प्लस ही प्लस के हैं। यहाँ को आप जितना मूव करते जाएंगे ये नंबर इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब आप 0 से आप बिलो 0 जाइए, 0 से नीचे है -1। ठीक है, ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस की साइन होगी वो उतना ज़्यादा छोटा नंबर कहलाएगा। अब 0 के बाद आप आ जाइए -1 -2 -3 -4 5 6, ये सब के साथ माइनस है एंड सो ऑन। तो ये डिक्रीजिंग होंगे, यानी कि ये 0 से छोटे होते चले जाएंगे। जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और यहाँ पे जितना बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू कहलाती हैं। द नंबर लाइन include 0. Positive number are placed on the right side of 0 while negative numbers appear on the left. पॉजिटिव नंबर आपकी राइट साइड पे हैं और यहाँ पे लेफ्ट पे आपके निगेटिव नंबर हैं। द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन एक्ट एज डायरेक्शन। सिमिलर to road direction that asks the driver to turn left or right. A positive sign denote movement to the right along the number line. The value increase as we move to the right. A negative denote movement to the left along the number line. The value decrease as we move left. For this reason, integers are also called directed number. The sign indicate the direction on the number line. अब ये इसमें इन्होंने ये बताया है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे लिए डायरेक्शन, अब ये नंबर लाइन पे अगर आप करेंगे साइन जो है आपको बता देगा। अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये आपको बता देगा कि ये जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो आपको बता देगा कि ये राइट की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट, द इंटीजर +3 इंडिकेट्स मूविंग 3 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0। इसका क्या मतलब है कि आप जो है अगर +3 दे रहे हैं इंटीजर, तो ये क्या होगा 3 स्टेप टू द राइट, यानी कि आप 3 स्टेप जो आगे बढ़ेंगे 0 से। द इंटीजर -5 इंडिकेट्स मूविंग 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट, यानी कि साइन से आपको जो साइन आपके पास गिवन है आपको उससे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपको लेफ़्ट है, अगर प्लस है तो आप राइट की तरफ मूव करेंगे, और अगर माइनस है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स है और आप किस तरफ, आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इफ़ द इंस्ट्रक्शन +3 -5 आर फॉलोड, ये आपने देख लिया कि किस तरह से आपको जो है इसका आपको अंदाज़ा लगाना है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 का, विच इज़ द स्मॉलर -4 और -5। आपने देखा जो नंबर छोटा होगा उसके साथ माइनस की साइन है वो बड़ा नंबर कहलाएगा। ठीक है ना, आप जब 0 से आप मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप इसका देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, look at the number line -5 rise to left of -4, so -5 is smaller than -4। अब आप ये देखिए नंबर लाइन है, आपने 0 से ये सारे नंबर्स जो हैं वो छोटे हैं क्योंकि दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, और ये नंबर सब बड़े हैं, ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब 0 के बाद आप देखिए यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए 0 से छोटा ये है, इससे भी छोटा ये वाला नंबर है, फिर ये भी इससे स्मॉलर देन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्मॉलर -5 और -4 और -5, कौन सा इसमें स्मॉलर हो जाएगा आपके पास, इसमें हो जाएगा -5 इज स्मॉलर देन -4। ये देखिए आप, जो नंबर बाद में आएगा वो जो है छोटा होगा। ठीक है, जितने आप
बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो छोटा होगा। इट मीन्स -5 इज स्मॉलर देन द -4, क्योंकि ये देखिए ये नियरेस्ट है ज़ीरो से ये करीब है, जितना करीब होगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो नंबर जो है वो बड़ा होगा। जैसे ये 0 से -1 है, -1 इससे छोटा है, 0 से छोटा है लेकिन ये -2 से बड़ा है। इसी तरह से -3 है, -4 से बड़ा है, -4 है, -5 से बड़ा है। इसी तरह ये मूवमेंट जो है आगे तक जाएगी। अब देखिए फिलिंग द बॉक्सेस विद द सिंबल। अब आपके पास ये -5, अच्छा -5, अब ये देखिए -5 है, अब ये आपके पास एक बॉक्स दिया है n+5। सोल्यूशन -5 राइज टू द डेप्थ ऑफ +5 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये ग्रेटर देन का साइन है स्टूडेंट। ये देखिए जब आपके पास ये इस तरह से आता है, ये जो साइन है ना, ये इस तरह से जब बनती है, ये बड़ी, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है स्टूडेंट। तो -5 राइज टू द लेफ्ट ऑफ +5 ऑन द नंबर लाइन। सो -5 जो है स्मॉलर देन +5, ठीक है। ये यहाँ पे कम खुल रहा है ना, ये स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, तो -5 जो है वो बड़ा है, -5 जो है वो छोटा है +5 से, ठीक है, 5 से, इट मीन्स 5। अच्छा इसका देखिए -14 राइज टू द लेफ्ट और -3 ऑन द नंबर लाइन। अब आप देखिए इसमें से कौन सा नंबर जो है वो छोटा होगा, -14, ठीक है ना, ये बहुत बाद में आएगा। -3 0 से नियरेस्ट है, 0 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो 0 से छोटे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 0 के बाद जितने नंबर आएंगे वो सब 0 से बड़े हैं। 0 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन, सो 0 इज ग्रेटर देन -5। ये देखिए 0 किससे बड़ा है, -5। तमाम माइनस के नंबर से 0 जो है वो बड़ा है और तमाम पॉजिटिव नंबर से 0 छोटा है, ठीक है। -5 लाइज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। अब ये देखिए ये इन्होंने इसलिए एग्जाम्पल स्टूडेंट दिए ताकि आपको पता चल जाए कि साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब ये देखिए -5, अब आप देखेंगे अगर इसका आप साइन हटा दें तो 10 बड़ा है, लेकिन जब आप इसमें साइन लगा देंगे तो जो नंबर बड़ा होगा वो माइनस के साइन के साथ है तो वो छोटा हो जाएगा। इट मीन्स -10 इज स्मॉलर देन -5। बुक में स्टूडेंट देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन योर बुक में आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं। तो पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है ग्रेटर देन और लेस देन का हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन है 0 से और सारे नेगेटिव जो नंबर हैं वो 0 से स्मॉलर देन है। अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया है, इसी का ये एग्जाम्पल है, विच इज़ स्मॉलर -99 और 9। अब आप देखिए कौन सा नंबर जो है वो छोटा है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लाइज टू द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, सो -99 इज स्मॉलर देन 9। इट मीन्स 9 इज़ ग्रेटर देन -99। अब अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 99 तो बड़ा होता है, ठीक है ना बेटा, हमारे जहन में यही बात आएगी कि 99 तो नंबर बड़ा है, तो फिर ये 9 से छोटा क्यों है? छोटा इसलिए है कि इसके पास नेगेटिव का साइन लिखा है, ठीक है बेटा। जितने भी नेगेटिव नंबर जितने भी बड़ा होगा वो इनसे छोटे कहलाएंगे। इसी तरह से आगे इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ पे फिर आपकी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप जो है इसमें देखें, इसमें आपके पास है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क। अब ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। अब ये आपके पास आ गया -3 -5 -2 1। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर आप 0 की पोजीशन अगर आप लिखेंगी, आप अगर नंबर लाइन बनाएंगी, इसमें बनाना नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है। तो आपके पास आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगी तो -5 जो है वो सबसे छोटा है, इसमें -5 है।
फिर -2 1 3, ठीक है ना। इसी तरह से आप इंक्रीजिंग उसमें चली जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है -1 -8 -7 और -2, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -8। अब आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में जाना है। अब -8 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा, फिर -2, फिर -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड वन इज -2 -4 0 2। अच्छा, अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर 4 है, लेकिन ये सबसे छोटा कहलाएगा बिकॉज इट हैज़ माइनस साइन, निगेटिव साइन। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा -4 -2 0 और 2, ये आपका आ गया इसका इंक्रीजिंग। अब इसका नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, ये मैं सब आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आपसे मैं ये सब शेयर कर चुकी हूँ। राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंटीजर्स लिखने हैं, यानी कि इसके बाद वाले लिखने हैं आपको कि क्या होंगे, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसमें आपके पास है -9 -6 -3। अच्छा, जब आप 0 से स्टार्ट लेते हैं तो 0 के बाद आता है -1 -2 -3। अब इन्होंने -3 से स्टार्ट किया, यानी कि -4 -5 इन्होंने लीव किया, -6 पे आ गए, -5, फिर आपने -6 किया, -7 -8 लीव किया, -9 पे आ गए, -9 तक आपके पास पहुंच गए, ठीक है। तो आपको अब इनका जो है आपको नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट किया, मैंने नंबर 9 पे मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को अभी ये ओरल ही बता रही हूँ। अब आपके पास हैगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आपका हो जाएगा 0 3 6, ये इसके नेक्स्ट इंटीजर्स हो जाएंगे। -9 से आपने अगर वहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है -3 के बाद आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि -2 आप यहाँ पे आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर आप 0 के बाद 2 नंबर 1 और 2 स्किप करेंगे, ये आ जाएगा 3। फिर आप 2 नंबर, यानी कि आपको 2 नंबर के डिफरेंस से ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज ये हैगा आपका 2 7 12। अब 2 7 12 में स्टूडेंट ये प्लस के नंबर है, प्लस इंटीजर्स हैं। अब 2 7 और 12 में आप देखिए 3 4 5 6, 4 नंबर इन्होंने स्किप किया और ये 7 पे पहुंच गए, ठीक है ना। 3 4 5 6, यानी कि 5 नंबर पे आपने जो है, आपने 2 में आपने 5 प्लस किया, ये हो गया 7 में आपने 5 प्लस किया, ये हो गया 12। अब आप 12 में आप 5 प्लस किए, आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट नंबर 17 में फिर 5 प्लस किए, वो आ जाएगा 22। फिर 22 में वी विल ऐड 22 + 5 27, यानी कि इसके नेक्स्ट जो नंबर हो जाएंगे वो जाएंगे 17 22 एंड 27। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बेटा करवाया था इसका कि 3 देखिए आप लोग बेटा, ये हैगा गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर आपको 2 पॉसिबल इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है बेटा, यानी कि 0 से आपको, अब ये है ग्रेटर देन 0। अब इससे 0 से कौन से नंबर छोटे हो सकते हैं ये आपको लिखने, 2 नंबर्स आपको लिखने। 0 से सारे नेगेटिव नंबर जो हैं वो लेस देन होंगे, लेकिन आपको जाहिर है आप जब आप इंक्लूड करेंगे तो आप 0 के बाद -1 देंगे, -1 के बाद आप -2 देंगे, ठीक है। 2 नंबर्स हो गए, ये आपका आ गया -1 -2, ठीक है बेटा। ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हैगा आपका इसका -2। अब आपको -2 से बड़े नंबर लिखना है, ठीक है। ये लेस देन -2, इससे बड़े लिखना है आपको। अब -2 से बड़ा कौन सा हो सकता है, 2 नंबर्स आपको लिखने, -1 भी बड़ा होगा और 0 भी होगा, तो इसका मतलब है -1 और 0। इसका नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, ये हैगा आपके पास -3 किन नंबरों से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, माइनस, इन्होंने पूछा -3 किन नंबरों से बड़ा है। अब -3 के स्टूडेंट, अब आप ये देखिए, इसमें मैंने आपका
बहुत ज़्यादा जो है 4B जो है 5A मैंने आपकी एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपकी बेटा ये 5B एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये देखिए जैसे स्टेट वेदर से फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जब ये आप इसको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं और इक्वल के दोनों वैल्यूज़ में इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्रू और फॉल्स हम देख लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग -29 प्लस -11 प्लस 40। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -29 -11 प्लस 40, ठीक है ना। सेम साइन वाले आप ऐड कर लें, अब ये हो जाएगा आपके पास -40, ये हो जाएगा +40, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यही मैंने आप लोगों को पहले भी ये वाली जो है वीडियो बताई थी आप लोगों को। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये हैगा मेरे पास 231 माइनस का है +51 प्लस -20। फर्स्टली वी विल अरेंज -231 प्लस 51 -20, ठीक है ना। इसको पहले आप अरेंज कर दें, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है इसमें अंदर, तो ये माइनस हो गया। अब आप इन माइनस माइनस वालों को प्लस कर लें, इट मीन्स -231 और -20 आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा -251, ठीक है बेटा। अब -251 में आप +51 कर दें, तो जब हमारे पास व्हेन वी हैव टू डिफरेंट साइन वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आपके पास डिफरेंट साइन होती है तो हमेशा हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है स्टूडेंट। आपने -251 में से आपने 51 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपके पास -200। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी पिक भी सेंड कर दी थी। अभी आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जो है, अच्छा इसमें मैंने आपको यही बताया था कि -29 आ गया, आपने इसको अरेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट वन आपके पास ये था, ये देखिए बेटा ये दो साइन है, ठीक है ना, माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे क्योंकि दे हैव माइनस साइन, सेम साइन, इन दोनों के सेम साइन, इन्हें प्लस करेंगे। इन्हें प्लस करने के बाद आप 51 इसमें माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -200, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से किया था बेटा, कि ये था हमारे पास -107 माइनस फिर ब्रैकेट में -97 प्लस -10। आपने पहले इसकी हमने फर्स्टली वी विल ओपन द ब्रैकेट, -107, ये हो गया माइनस माइनस, ये जब आ जाता है ना ब्रैकेट तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये माइनस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस है, ये हमारे पास माइनस हो गया। इन अलजेब्रा व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस वी विल गेट प्लस साइन, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 माइनस के साइन होंगे तो प्लस आएगा, 2 प्लस के साइन होंगे तो प्लस आएगा। जब सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आएगा। जब डिफरेंट साइन होंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो हमेशा उसका आंसर माइनस में आएगा। ये हमने यहाँ पे एक स्टेप इसमें मैंने और लिखा। अब आपने इसको अरेंज किया, माइनस वाले आपने वन साइडेड कर लिए, 97 आपने यहाँ पे कर लिया। इन्हें आपने प्लस किया 107 को और 10 को, ये हो गया -117 प्लस 97। अब 117 में से आप 97 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -20, क्योंकि जब आपने देखी दोनों साइन अलग है तो अब आप इनको ज़ाहिर है आपने इसमें से माइनस की 20 आ गया, बड़े नंबर की आप साइन लगा दें सिंपली। ये इतना ईजी होता है बेटा, अगर एक दफ़ा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो ऑल ऑफ़ यू डू ऑल क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू कैन डू। अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, 3 प्लस -14 माइनस फिर -10। अच्छा 3 आपने लिखा, फिर ये ब्रैकेट है, माइनस प्लस माइनस आ गया आपके पास, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप 10 और 3 को हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों एक से साइन है। ये -14 आपने इसको सेपरेट कर दिया, 3 में आपने 10 प्लस किया, ये 13 हो गया, ये माइनस का 14 है। अब आप 14 में से आपने 13 माइनस किया, वी विल गेट 1, किसका 1 आएगा, ये माइनस का आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर है निगेटिव साइन, ग्रेटर नंबर के पास आपके पास माइनस का साइन है, तो वी विल गेट -1 आंसर। स्टूडेंट मैंने आपको इसमें
वर्ड प्रॉब्लम भी एक कराया था, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -129, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर। अच्छा, इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में टू इंटीजर्स का सम, यानी कि टू इंटीजर जो हैं उनको जब आप प्लस करते हैं तो -129 के बराबर होगा वो, ठीक है। उनका यानी कि सम है जब प्लस आप करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इंटीजर कौन सा गिवन है, ये है मेरे पास 150, ये आपके पास गिवन है, ये समझिए गिवन डेटा है आपके पास। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला आपने बनाया सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। ये मैंने एक फार्मूला इसलिए बना दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अच्छा, सेकेंड इंटीजर्स आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, वहीं पे रहेगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स आपके पास गिवन था बेटा, ये था -129, ठीक है। माइनस का साइन डाला आपने, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। 150 आपने लिख दिया। अब -129 और -150 आपके पास आ गया -279, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हमने माइनस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता इसके साथ तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, आंसर चेंज हो जाता इसका, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से इसका मैंने नेक्स्ट भी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 52 इफ वन ऑफ देम इज -18 फाइंड द अदर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन था कि सम दिया हुआ है टू इंटीजर्स का, ठीक है। पहले आपने इसका डेटा बना लिया, इसी क्वेश्चन में से आपने देख के इसका डेटा बना लिया कि सम ऑफ टू इंटीजर, इसी में से लिखिए आप, ठीक है। इसी को आपको कॉपी डाउन करना है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स किसके इक्वल है, 52 के। फर्स्ट इंटीजर्स लिख दें या वन इंटीजर्स, ठीक है, इक्वल टू -18। नेक्स्ट इंटीजर वी कैन फाइंड आउट, नेक्स्ट इंटीजर मीन सेकेंड इंटीजर। वही फॉर्मूला आप इसमें भी अप्लाई करेंगे, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। सम ऑफ टू इंटीजर्स मेरे पास था 52। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस का साइन आपने डाला, सही है स्टूडेंट। फर्स्ट इंटीजर्स मेरे पास है -18, ये माइनस का साइन ये वाला है, और फर्स्ट इंटीजर्स का ये जो माइनस के साथ है वो लिखा हमने। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 52 + 18 वी विल गेट 70। इसी तरह से स्टूडेंट मैंने आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था, और आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। अब इसमें आपको क्या करना था, आपको सेकेंड जो था सेकेंड इंटीजर आपको मालूम करना था, लेकिन द प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना था, पहले तो आपने इसका डेटा बना लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू -160। फिर आपने गिवन डेटा में से आपने यहीं से लिया फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 8, सेकेंड इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीजर्स के, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इंटीजर्स की जगह फर्स्ट इंटीजर्स की वैल्यू लिख दी, वो है हमारे पास 8, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। सेकेंड इंटीजर्स की जगह वो तो हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ आपने लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आई है 160, ये लिख दिया आपने। अब सेकेंड इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, आपको मैंने अलजेब्रा में भी सिखाया है कि अगर आप सपोज दैट आप 2x = 50 लिखते हैं तो x = आप 50/2 कर देंगे, ठीक है ना। वो जो है वो डिवाइड हो जाता है नंबर। इसी तरह से जब आप सेकेंड इंटीजर ये वाला जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, 8 इसके नीचे गया, ये -160 के नीचे 8 चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 का 0, वी विल गेट सेकेंड इंटीजर -20, यानी कि इसका जो है फाइंड द अदर नंबर जो है वो आ गया -20। स्टूडेंट अब आप ये देखिए, इसमें यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, -15 × 8 प्लस -15 × -6, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास बुक की एग्जाम्पल है ये। अब देखिए इन्होंने सिंपली क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली जो है जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ रहा है आप उसको छोड़ दें, पहले मल्टीप्लाई वाले आप मल्टीप्लाई कर दें। आपने -15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 120, ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने प्लस का साइन डाला, अब आपने -6 को आपने -15 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपके पास 90। अब आप इनको 120 में से 90 माइनस करें, वी विल गेट -30,
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें जो आपने इस एग्जाम्पल में पहले हमने ये वाला हाफ पोर्शन सॉल्व किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये हाफ पोर्शन सॉल्व किया। इनके आंसर लिखने के बाद आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें हैं भी जो मैंने उसमें करवाए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप इसका नेक्स्ट भी देख लें, ये भी इसी तरह से होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें वीडियो में अपलोड कर रही हूँ कि 20 इंटू -13 फिर माइनस का साइन है ब्रैकेट में 10 इंटू -13। अच्छा, इसमें देखिए आपने 20 को आपने -13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 260। ठीक है बेटा, अब ये आप देखिए माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये प्लस को फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अगर इवन नंबर में माइनस होते हैं तो हमेशा प्लस हो जाते हैं, और अगर ऑड नंबर में होते हैं तो माइनस ही आता है। अब ये माइनस आ गया, 13 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 130। इसके बाद आपने 130 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। वी विल ऐड बोथ नंबर बिकॉज बोथ है सेम साइन, नेगेटिव साइन, दोनों के पास माइनस का साइन है, आपने इनको प्लस कर दिया, ये हो गया -390, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के जो मेरा क्वेश्चन है इंटीजर्स में बहुत ज़्यादा इंटीजर्स का जो इंटीजर जो होता है P/Q होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें जो है इसमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका जो है एक रिव्यू था 5 चैप्टर का, जो कि आपको मैं जिसका वर्क भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये सिर्फ समझाने के लिए दोबारा आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से इंटीजर्स जो है आपको इसमें शो करना है और किस तरह से आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट। अब आप ये देखिए, इसमें मैंने आपका बहुत ज़्यादा जो है 4B जो है 5A मैंने आपकी एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपकी बेटा ये 5B एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये देखिए, जैसे स्टेट वेदर से फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जब ये आप इसको डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करते हैं और इक्वल के दोनों वैल्यूज़ में इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्रू और फॉल्स हम देख लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग, -29 प्लस -11 प्लस 40। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -29 -11 प्लस 40। ठीक है ना, सेम साइन वाले आप ऐड कर लें। अब ये हो जाएगा आपके पास -40, ये हो जाएगा +40, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को पहले भी ये वाली जो है वीडियो बताई थी आप लोगों को। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये हैगा मेरे पास 231 माइनस का है, +51 प्लस -20। फर्स्टली वी विल अरेंज -231 प्लस 51 -20। ठीक है ना, इसको पहले आप अरेंज कर दें। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है इसमें अंदर, तो ये माइनस हो गया। अब आप इन माइनस माइनस वालों को प्लस कर लें। इट मीन्स -231 और -20 आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा -251। ठीक है बेटा, अब -251 में आप +51 कर दें। तो जब हमारे पास व्हेन वी हैव टू डिफरेंट साइन वी विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंट साइन होती है तो हमेशा हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही है स्टूडेंट, आपने -251 में से आपने 51 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपके पास -200। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी पिक भी सेंड कर दी थी। अभी आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जो है, अच्छा इसमें मैंने आपको यही बताया था कि -29 आ गया, आपने इसको अरेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट वन आपके पास ये था, ये देखिए बेटा, ये 2 साइन है। ठीक है ना, माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे क्योंकि दे हैव माइनस साइन, सेम साइन, इन दोनों के सेम साइन, इन्हें प्लस करेंगे। इन्हें प्लस करने के बाद आप 51 इसमें माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -200। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से किया था बेटा, कि ये था हमारे पास -107 माइनस फिर ब्रैकेट में -97 प्लस -10। आपने पहले इसको पहले इसकी हमने फर्स्टली वी विल ओपन द ब्रैकेट,
-107, ये हो गया माइनस माइनस, ये जब आ जाता है ना ब्रैकेट तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये माइनस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई की, ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस है, ये हमारे पास माइनस हो गया। इन अलजेब्रा when we will multiply minus into minus we will get plus sign. When we will multiply minus into plus we will get minus sign, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 माइनस के साइन होंगे तो प्लस आएगा, 2 प्लस के साइन होंगे तो प्लस आएगा। जब सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आएगा। जब डिफरेंट साइन होंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो हमेशा उसका आंसर माइनस में आएगा। ये हमने यहाँ पे एक स्टेप इसमें मैंने और लिखा। अब आपने इसको अरेंज किया, माइनस वाले आपने वन साइडेड कर लिए, 97 आपने यहाँ पे कर लिया। इन्हें आपने प्लस किया 107 को और 10 को, ये हो गया -117 प्लस 97। अब 117 में से आप 97 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -20, क्योंकि जब आपने देखी दोनों साइन अलग है तो अब आप इनको, जाहिर है आपने इसमें से माइनस की 20 आ गया, बड़े नंबर की, आप साइन लगा दें सिंपली। ये इतना ईजी होता है बेटा, अगर एक दफ़ा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो ऑल ऑफ़ यू डू ऑल क्वेश्चंस, ऑल ऑफ़ यू कैन डू। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, 3 प्लस -14 माइनस फिर -10। अच्छा, 3 आपने लिखा, फिर ये ब्रैकेट है, माइनस प्लस माइनस आ गया आपके पास, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप 10 और 3 को हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों एक से साइन है। ये -14 आपने इसको सेपरेट कर दिया। 3 में आपने 10 प्लस किया, ये 13 हो गया, ये माइनस का 14 है। अब आप 14 में से आपने 13 माइनस किया, वी विल गेट 1। किसका 1 आएगा? ये माइनस का आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर है निगेटिव साइन। ग्रेटर नंबर के पास आपके पास माइनस का साइन है, तो वी विल गेट -1 आंसर। स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी एक कराया था। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -129, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर। अच्छा, इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में 2 इंटीजर्स का सम, यानी कि 2 इंटीजर जो हैं उनको जब आप प्लस करते हैं तो -129 के बराबर होगा वो, ठीक है। उनका यानी कि सम है जब प्लस आप करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इंटीजर कौन सा गिवन है? ये है मेरे पास 150, ये आपके पास गिवन है, ये समझिए गिवन डेटा है आपके पास। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला आपने बनाया, सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। ये मैंने एक फार्मूला इसलिए बना दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अच्छा, सेकेंड इंटीजर्स आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, वहीं पे रहेगा। सम ऑफ 2 इंटीजर्स आपके पास गिवन था बेटा, ये था -129, ठीक है। माइनस का साइन डाला आपने, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। 150 आपने लिख दिया। अब -129 और -150 आपके पास आ गया -279, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हमने माइनस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता इसके साथ तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, आंसर चेंज हो जाता इसका, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से इसका मैंने नेक्स्ट भी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 52 इफ वन ऑफ देम इज -18 फाइंड द अदर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन था कि सम दिया हुआ है 2 इंटीजर्स का, ठीक है। पहले आपने इसका डेटा बना लिया, इसी क्वेश्चन में से आपने देख के इसका डेटा बना लिया कि सम ऑफ 2 इंटीजर, इसी में से लिखिए आप, ठीक है। इसी को आपको कॉपी डाउन करना है कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स किसके इक्वल है? 52 के। फर्स्ट इंटीजर्स लिख दें या 1 इंटीजर्स, ठीक है, इक्वल टू -18। नेक्स्ट इंटीजर वी कैन फाइंड आउट, नेक्स्ट इंटीजर मीन सेकेंड इंटीजर। वही फॉर्मूला आप इसमें भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। सम ऑफ 2 इंटीजर्स मेरे पास था 52। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस का साइन आपने डाला, सही है स्टूडेंट। फर्स्ट इंटीजर्स मेरे पास है -18, ये माइनस का साइन ये वाला है और फर्स्ट इंटीजर्स का ये जो माइनस के साथ है वो लिखा हमने। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 52 प्लस 18 वी विल गेट 70। इसी तरह से स्टूडेंट मैंने आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था और आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। अब इसमें आपको क्या करना था, आपको सेकेंड जो था सेकेंड इंटीजर आपको मालूम करना था, लेकिन द प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना था। पहले तो आपने इसका डेटा बना लिया,
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू -160। फिर आपने गिवन डेटा में से आपने यहीं से लिया फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 8, सेकेंड इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीजर्स के। ठीक है, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इंटीजर्स की जगह फर्स्ट इंटीजर्स की वैल्यू लिख दी, वो है हमारे पास 8, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। सेकेंड इंटीजर्स की जगह वो तो हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ आपने लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आई है 160, ये लिख दिया आपने। अब सेकेंड इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको मैंने अलजेब्रा में भी सिखाया है कि अगर आप सपोज दैट आप 2x इजिकल टू 50 लिखते हैं तो x इजिकल टू आप 50/2 कर देंगे, ठीक है ना, वो जो है वो डिवाइड हो जाता है नंबर। इसी तरह से जब आप सेकेंड इंटीजर ये वाला जब आप फाइंड आउट करना है तो ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, 8 इसके नीचे गया, ये -160 के नीचे 8 चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 का 0, वी विल गेट सेकेंड इंटीजर -20, यानी कि इसका जो है फाइंड अदर नंबर जो है वो आ गया -20। स्टूडेंट अब आप ये देखिए इसमें यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू -6। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास बुक की एग्जाम्पल है ये। अब देखिए इन्होंने सिंपली क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली जो है जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ रहा है आप उसको छोड़ दें, पहले मल्टीप्लाई वाले आप मल्टीप्लाई कर दें। आपने -15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 120, ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने प्लस का साइन डाला, अब आपने -6 को आपने -15 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपके पास 90। अब आप इनको 120 में से 90 माइनस करें, वी विल गेट -30। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें जो आपने इस एग्जाम्पल में पहले हमने ये वाला हाफ पोर्शन सॉल्व किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये हाफ पोर्शन सॉल्व किया। इनके आंसर लिखने के बाद आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें हैं भी जो मैंने उसमें करवाए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप इसका नेक्स्ट भी देख लें, ये भी इसी तरह से होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें वीडियो में अपलोड कर रही हूँ कि 20 इंटू -13, फिर माइनस का साइन है ब्रैकेट में 10 इंटू -13। अच्छा, इसमें देखिए आपने 20 को आपने -13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 260। ठीक है बेटा, अब ये आप देखिए माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये प्लस को फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अगर इवन नंबर में माइनस होते हैं तो हमेशा प्लस हो जाते हैं और अगर ऑड नंबर में होते हैं तो माइनस ही आता है। अब ये माइनस आ गया, 13 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 130। इसके बाद आपने 130 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, वी विल ऐड बोथ नंबर बिकॉज बोथ है सेम साइन, नेगेटिव साइन, दोनों के पास माइनस का साइन है, आपने इनको प्लस कर दिया, ये हो गया -390, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के जो मेरा क्वेश्चन है इंटीजर्स में बहुत ज़्यादा इंटीजर्स का जो इंटीजर जो होता है P/Q होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें जो है इसमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका जो है एक रिव्यू था 5 चैप्टर का, जो कि आपको मैं जिसका वर्क भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये सिर्फ समझाने के लिए दोबारा आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से इंटीजर्स जो है आपको इसमें शो करना है और किस तरह से आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट। अब आप ये देखिए, इसमें मैंने आपका बहुत ज़्यादा जो है 4B जो है 5A मैंने आपकी एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपकी बेटा ये 5B एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये देखिए जैसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जब ये आप इसको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं और इक्वल के दोनों वैल्यूज़ में इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्रू और फॉल्स हम देख लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग, -29 प्लस -11 प्लस 40। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -29 -11 प्लस 40। ठीक है ना, सेम साइन वाले आप ऐड कर लें। अब ये हो जाएगा आपके पास -40, ये हो जाएगा +40, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को पहले भी ये वाली जो है वीडियो बताई थी आप लोगों को।
इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये हैगा मेरे पास 231 माइनस का है प्लस 51 प्लस माइनस 20। फर्स्टली वी विल अरेंज माइनस 231 प्लस 51 माइनस 20, ठीक है ना। इसको पहले आप अरेंज कर दें, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है इसमें अंदर, तो ये माइनस हो गया। अब आप इन माइनस माइनस वालों को प्लस कर लें, इट मीन्स माइनस 231 और माइनस 20 आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 251, ठीक है बेटा। अब माइनस 251 में आप प्लस 51 कर दें, तो जब हमारे पास व्हेन वी हैव टू डिफरेंट साइन वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आपके पास डिफरेंट साइन होती है तो हमेशा हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है स्टूडेंट। आपने माइनस 251 में से आपने 51 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपके पास माइनस 200। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी पिक भी सेंड कर दी थी। अभी आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जो है, अच्छा इसमें मैंने आपको यही बताया था कि माइनस 29 आ गया, आपने इसको अरेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट वन आपके पास ये था, ये देखिए बेटा ये दो साइन है, ठीक है ना, माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे क्योंकि दे हैव माइनस साइन, सेम साइन, इन दोनों के सेम साइन, इन्हें प्लस करेंगे। इन्हें प्लस करने के बाद आप 51 इसमें माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस 200, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से किया था बेटा, कि ये था हमारे पास माइनस 107 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 97 प्लस माइनस 10। आपने पहले इसको पहले इसकी हमने फर्स्टली वी विल ओपन द ब्रैकेट, माइनस 107 ये हो गया माइनस माइनस, ये जब आ जाता है ना ब्रैकेट तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये माइनस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई की, ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है। ये माइनस प्लस है, ये हमारे पास माइनस हो गया। इन अलजेब्रा व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस इनटू माइनस वी विल गेट प्लस साइन, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस इनटू प्लस वी विल गेट माइनस साइन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 माइनस के साइन होंगे तो प्लस आएगा, 2 प्लस के साइन होंगे तो प्लस आएगा। जब सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आएगा। जब डिफरेंट साइन होंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो हमेशा उसका आंसर माइनस में आएगा। ये हमने यहाँ पे एक स्टेप इसमें मैंने और लिखा। अब आपने इसको अरेंज किया, माइनस वाले आपने वन साइडेड कर लिए, 97 आपने यहाँ पे कर दिया। इन्हें आपने प्लस किया 107 को और 10 को, ये हो गया माइनस 117 प्लस 97। अब 117 में से आप 97 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 20, क्योंकि जब आपने देखी दोनों साइन अलग है तो अब आप इनको जाहिर है आपने इसमें से माइनस की 20 आ गया, बड़े नंबर की, आप साइन लगा दें सिंपली। ये इतना ईजी होता है बेटा, अगर एक दफ़ा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो ऑल ऑफ यू डू ऑल क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू कैन डू। अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 3 प्लस माइनस 14 माइनस फिर माइनस 10। अच्छा 3 आपने लिखा, फिर ये ब्रैकेट है, माइनस प्लस माइनस आ गया आपके पास, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप 10 और 3 को हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों एक से साइन है। ये माइनस 14 आपने इसको सेपरेट कर दिया, 3 में आपने 10 प्लस किया, ये 13 हो गया, ये माइनस का 14 है। अब आप 14 में से आपने 13 माइनस किया, वी विल गेट 1। किसका 1 आएगा? ये माइनस का आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर है निगेटिव साइन। ग्रेटर नंबर के पास आपके पास माइनस का साइन है, सो वी विल गेट -1 आंसर। स्टूडेंट मैंने आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी एक कराया था, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -129, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर। अच्छा इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में 2 इंटीजर्स का सम, यानी कि 2 इंटीजर जो हैं उनको जब आप प्लस करते हैं तो -129 के बराबर होगा वो, ठीक है। उनका यानी कि सम है जब प्लस आप करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इंटीजर कौन सा गिवन है? ये है मेरे पास 150, ये आपके पास गिवन है, ये समझिए गिवन डेटा है आपके पास। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला आपने बनाया, सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। ये मैंने एक फार्मूला इसलिए बना दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अच्छा सेकेंड इंटीजर्स आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, वहीं पे रहेगा। सम ऑफ 2 इंटीजर्स आपके पास गिवन था बेटा, ये था -129,
ठीक है। माइनस का साइन डाला आपने, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। 150 आपने लिख दिया। अब -129 और -150 आपके पास आ गया -279, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हमने माइनस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता है इसके साथ तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, आंसर चेंज हो जाता है इसका, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से इसका मैंने नेक्स्ट भी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 52 इफ वन ऑफ देम इज -18, फाइंड द अदर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन था कि सम दिया हुआ है टू इंटीजर्स का, ठीक है। पहले आपने इसका डेटा बना लिया, इसी क्वेश्चन में से आपने देख के इसका डेटा बना लिया कि सम ऑफ टू इंटीजर, इसी में से लिखिए आप, ठीक है। इसी को आपको कॉपी डाउन करना है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स किसके इक्वल है, 52 के। फर्स्ट इंटीजर्स लिख दें या वन इंटीजर्स, ठीक है, इक्वल टू -18। नेक्स्ट इंटीजर वी कैन फाइंड आउट, नेक्स्ट इंटीजर मीन सेकेंड इंटीजर। वही फॉर्मूला आप इसमें भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर। सम ऑफ टू इंटीजर्स मेरे पास था 52। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस का साइन आपने डाला, सही है स्टूडेंट। फर्स्ट इंटीजर्स मेरे पास है -18, ये माइनस का साइन ये वाला है, और फर्स्ट इंटीजर्स का ये जो माइनस के साथ है वो लिखा हमने। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 52 प्लस 18 वी विल गेट 70। इसी तरह से स्टूडेंट मैंने आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था, और आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8, फाइंड द अदर। अब इसमें आपको क्या करना था, आपको सेकंड जो था सेकंड इंटीजर आपको मालूम करना था, लेकिन द प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना था, पहले तो आपने इसका डेटा बना दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू -160, फिर आपने गिवन डेटा में से आपने यहीं से लिया फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 8, सेकेंड इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीजर्स के, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इंटीजर्स की जगह फर्स्ट इंटीजर्स की वैल्यू लिख दी, वो है हमारे पास 8, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। सेकेंड इंटीजर्स की जगह वो तो हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ आपने लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आई है 160, ये लिख दिया आपने। अब सेकेंड इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको मैंने अलजेब्रा में भी सिखाया है कि अगर आप सपोज आप 2x इजिकल टू 50 लिखते हैं तो x इजिकल टू आप 50/2 कर देंगे, ठीक है ना, वो जो है वो डिवाइड हो जाता है नंबर। इसी तरह से जब आप सेकेंड इंटीजर ये वाला जब आप फाइंड आउट करना है तो ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, 8 इसके नीचे गया, ये -160 के नीचे 8 चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 का 0, वी विल गेट सेकेंड इंटीजर -20, यानी कि इसका जो है फाइंड द अदर नंबर जो है वो आ गया -20। स्टूडेंट अब आप ये देखिए इसमें यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू -6, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास बुक की एग्जाम्पल है ये। अब देखिए इन्होंने सिंपली क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली जो है जहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ रहा है आप उसको छोड़ दें, पहले मल्टीप्लाई वाले आप मल्टीप्लाई कर दें। आपने -15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 120, ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने प्लस का साइन डाला, अब आपने -6 को आपने -15 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपके पास 90। अब आप इनको 120 में से 90 माइनस करें, वी विल गेट -30, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इसमें जो आपने इस एग्जाम्पल में पहले हमने ये वाला हाफ पोर्शन सॉल्व किया, फिर प्लस का साइन डाला, फिर ये हाफ पोर्शन सॉल्व किया। इनके आंसर लिखने के बाद आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें हैं भी जो मैंने उसमें करवाए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप इसका नेक्स्ट भी देख लें, ये भी इसी तरह से होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें वीडियो में अपलोड कर रही हूँ कि 20 इंटू -13, फिर माइनस का साइन है ब्रैकेट में 10 इंटू -13। अच्छा इसमें देखिए आपने 20 को आपने -13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 260, ठीक है बेटा। अब ये आप देखिए माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये प्लस को फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अगर इवन नंबर में माइनस होते हैं
तो हमेशा प्लस हो जाते हैं, और अगर ऑड नंबर में होते हैं तो माइनस ही आता है। अब ये माइनस आ गया, 13 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 130। इसके बाद आपने 130 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। वी विल ऐड बोथ नंबर बिकॉज बोथ हैव सेम साइन, नेगेटिव साइन। दोनों के पास माइनस का साइन है, आपने इनको प्लस कर दिया, ये हो गया -390, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के जो मेरा क्वेश्चन है इंटीजर्स में बहुत सारे इंटीजर्स का जो इंटीजर जो होता है P/Q होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें जो है इसमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका जो है एक रिव्यू था 5 चैप्टर का, जो कि आपको मैं जिसका वर्क भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये सिर्फ समझाने के लिए दोबारा आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से इंटीजर्स जो है आपको इसमें शो करना है और किस तरह से आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।